Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today we are going to discuss the syllabus of Communicative English, code number 101 for class 9th for this session 2024-25. Okay, so first let us have a look at the section-wise weightage. The communicative paper is going to be divided into 4 sections. The first section is reading skills. It has a weightage of 20 marks. The second section is writing skills. It will have a weightage of 24 marks. The third section will be of grammar with a weightage of 10 marks. And the last section will be based on the literature textbook, and it will have a weightage of 26 marks. So the total paper will be of 80 marks. Now in reading skills, there will be 2 questions of 10 marks each, and the recommended time period for teaching of comprehension skills is 40 periods. Now the 2 passages will have a word limit of 600 words, and it can be based on any of the following, that is, it can be a literary passage, it can be a factual passage, it can be a discursive passage, and for this we can refer to the main course book. Now the type of questions that will be asked will be objective type questions. They will include multiple choice questions or very short answer type questions, and they will test the inference, the evaluation, the analysis and vocabulary in context. अब इसका मतलब होता है कि ये जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे ये इन्फरेंस पे होंगे. इन्फरेंसेस आर अंडरस्टैंडिंग, हम क्या इन्फर कर रहे हैं, हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं. इवैल्यूएशन, हमें क्या समझ में आता है, हाउ डू वी इवैल्यूएट थिंग्स, कि वो सही हुई या गलत हुई. एनालिसिस, कि कौन सही था कौन गलत था. एंड अगेन वोकैबुलरी. तो इस तरह से दे विल बी 2 passages and they will be of MCQ kind objective type questions. The next section is the writing skills sections. It has a weightage of 24 marks, and the recommended time frame for teaching writing skills is 50 periods, and it contains 4 questions. अब इसमें जो 4 questions हैं, इसमें short questions भी हैं, long writing task भी हैं. So the first question will be a notice writing question, which is a short writing task, and you can write a notice for the school assembly or something related to the resident welfare association or something related to school events or classroom information etc. तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको नोटिस लिखना होगा, and it will have a weightage of 4 marks. The word limit for the same will be 50 words. The next question will be dialogue writing. It has a weightage of 5 marks with a minimum 100 words word limit. Dialogue writing का मतलब होता है kind of a conversation. Dialogues आपने लिखने होते हैं between 2 people. The third question will be an informal letter. It has a weightage of 7 marks and the maximum words is 120 words. The last question in this section will be a paragraph on any, you have to write 1 paragraph out of 2 given themes. 2 themes आपको question paper में दी जाएंगी, जिसमें से आपने किसी एक theme के ऊपर paragraph लिखना है. Again, these themes will be based on the main course book. इसके लिए आपको या तो verbal या visual cues दिए जाएंगे, hints दिए जाएंगे, and using those cues you have to write the paragraph. The weightage for the same is 8 marks, and the word limit is 150 words. The next section is grammar section. It has a weightage of 10 marks and the recommended time frame is 20 periods. जो ग्रामर टॉपिक्स हैं जो हम शुरुआत से पढ़ाते आ रहे हैं, those are the ones which are going to be tested. So these include the tenses, all the 12 tenses, right? Past, present and future के all the 4 forms. So all the tenses will be tested. Then the modals will be tested. Third is the subject verb concord. Subject verb concord का मतलब होता है subject verb agreement. Then reported speech में आएंगे, but they will be based on 3 types of sentences, that is commands and requests, statements and questions.
Clauses will also be there, and clauses will be based, the different clauses that we have to focus on will be noun clause, adverb clause and relative clause, and the last topic is determiner. तो ये 6 टॉपिक्स यूज करके आपका ग्रामर सेक्शन टेस्ट किया जाएगा. अब टेस्टिंग क्वेश्चंस कैसे होंगे? There will be gap filling of 3 marks. Then the next will be a question based on editing or omission, which will be of 4 marks. And the last question will be sentence reordering or sentence transformation, which will have a weightage of 3 marks. The last section is going to be based on the literature textbook. The weightage for the same is 26 marks and the recommended time period is 50 periods. अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, आइदर फ्रॉम द प्रोज और द पोएट्री. अब ये 3 एक्सट्रैक्ट्स में से आपने 2 एक्सट्रैक्ट्स को अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होगा? दे विल बी आइदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, राइट? अब ये टेस्ट क्या करेंगे? ये आपको टेस्ट करेंगे आपकी लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, आपका इंटरप्रिटेशन, आपके एनालिसिस, आप कितने अच्छे से चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करते हो, इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो. तो ये जो 2 एक्सट्रैक्ट्स हैं इनकी वेटेज होगी 4 मार्क्स ईच एंड टोटल विल बी 8 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. 7 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करना है. ये आपके लिटरेचर रीडर पे बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, एंड अगेन ये आपकी लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करेंगे regarding the theme, the ideas, how to analyze the text, evaluate the text. Word limit of these questions will be 30 to 40 words. The weightage of each question will be 2 marks, and so 2 into 6 is the question will be of 12 marks. The last question will be a long answer type question. इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है, और इसमें जो वैल्यू बेस्ड ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा दैट विल बी अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. इसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड अक्रॉस द टेक्स्ट को असेस किया जाएगा. व्हाट इज मेंट बाय एक्सट्रापोलेशन? दैट इज मेकिंग कनेक्शंस बियॉन्ड द टेक्स्ट, मतलब जो आप अपने टेक्स्ट बुक से निकल के रियल लाइफ के साथ आप उस सिचुएशन को जोड़ते हो, कनेक्ट करते हो, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होगा, या फिर 2 चैप्टर्स का कंपैरिजन किया जाएगा और आपको दोनों को जस्टिफाई करना होगा. अब इस क्वेश्चन के लिए एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मतलब some lines from the text can be taken and on that a question will be framed, right, regarding the situation or the plot, और आपको फिर उसको आंसर करना होगा. So the word limit for the same is 120 words and the marks are 6 marks, sorry. Now the books for communicative English are the English series, that is Interact in English series, which has been introduced by CBSE. ये आपके CBSE academic.nic.in पे available हैं, and it has 3 books. The main course book जिसको हम MCB कहते हैं, again you have to go in for the revised edition. Then the second book is literature reader, again you have to take the revised edition. And finally the workbook. Workbook means the grammar book. तो जो टॉपिक्स हमने करने हैं वो सारे वर्कबुक में कवर्ड है. नाउ अब लास्ट एडवाइस जो टीचर्स को दी गई है कि आपने टीचर टॉकिंग टाइम जो है उसको मिनिमम रखना है और अपने स्टूडेंट्स के बीच में क्लासरूम इंटरेक्शन को एनकरेज करना है. Now, classroom interaction should be between among the peers, among the students, and among the students and teachers. Now, this should be done through activities such as role play, group work, interviews. किसी भी तरह की एक्टिविटी यूज करके आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो इंटरेक्शन है वो स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में हो, एंड फाइनली द टीचर कैन बी इंक्लूडेड इनटू द इंटरेक्शन. नाउ आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी डिसाइड करने हैं डिस्कशन के लिए, और ये क्वेश्चंस जो होने चाहिए
ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने चाहिए दैट दे आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट। दे नीड टू मार्शल देयर आइडियाज़ मतलब स्ट्रीमलाइन देयर आइडियाज़, उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके एंड अपने व्यू पॉइंट को डिफेंड कर सके। तो ये सारी स्किल्स हमने बच्चों में डेवलप करनी है थ्रू द क्लासरूम एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर्स। 80 मार्क्स का आपका राइटिंग पेपर होता है एंड 20 मार्क्स का आपकी डिफरेंट असेसमेंट्स होती हैं इन 9th एंड 10th। 5 मार्क्स इज़ फॉर ALS, 5 मार्क्स इज़ फॉर portfolio and 10 marks is for your notebook and class test and all those things combined. So we will now focus on ALS. What is ALS? That is assessment of listening and speaking skills. अब ALS जो है ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट के अंदर आता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट और हमें ये याद रखना है कि ASL जो है इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल्स। 4 लैंग्वेज स्किल्स मतलब LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो अब हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, हम जब ये ALS करा रहे हैं तो ये चारों स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करेगा। बट जब हम असेसमेंट कर रहे होंगे तब हमने उनकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल के ऊपर एम्फसाइज करके मार्क्स लगाने हैं। रीडिंग और राइटिंग जो है वो ऑलरेडी उनके जो एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम है उसमें असेस हो जाएगा। सो आवर फोकस विल बी ऑन हाउ दे स्पीक एंड देयर लिसनिंग स्किल। नाउ अब इसके लिए एक्टिविटीज़ आप क्या कर सकते हैं? आपको जो सिलेबस में बुक्स दी हैं आप उनको रेफ़र करो। आप अपनी खुद की एक्टिविटीज़ बना सकते हो, खुद का मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी आपने कंपल्सरी नहीं है कि BBC वाला ही जो हम इनिशियली कई साल पहले BBC लिसनिंग कंसेप्ट स्पीकिंग कंसेप्ट्स करते थे, आपने वही फ़ॉलो करना है। You can create your own ideas, your own activities to assess the listening and speaking skills, right? अब पैरामीटर्स क्या हैं जिस पे आपने इनको असेस करना है? दैट इज फर्स्ट इज इंटरैक्टिव कॉम्पिटेंसी। क्या दो पार्टनर्स टर्न टेकिंग, इनिशिएटिव इन स्पीकिंग, do they speak, is what they are speaking relevant to the topic? तो ये चीज़ों को आपने असेस करना है। देन यू विल बी असेसिंग द फ्लुएंसी। फ्लुएंसी के अंडर आ जाता है कोहेजन, कोहेरेंस एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी। कोहेजन का मतलब होता है आर द आइडियाज रिलेटेड, राइट? कोहेरेंस होता है इज द सीक्वेंस बीइंग फॉलोड एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी, ना तो इतना तेज हो कि किसी को समझ नहीं आए, ना ही इतना स्लो हो कि इट बिकम्स बोरिंग। यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि डिलीवरी का स्पीड क्या वो अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। देन अगेन प्रोनाउंसिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीकिंग एंड ग्रामर एंड वोकैबुलरी हम ऑटोमेटिकली लैंग्वेज स्किल्स में टेस्ट कर लेते हैं। So this is how we are going to test the ALS. Now this is very important. When we are teaching literature, what are the key points we need to focus on, right? When we teach literature तो हमारा aim होता है and that aim is that students should be able to comprehend the text. वो क्या पढ़ रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, उनको nuances को interpret करने आना चाहिए कि जो शब्द कहे जा रहे हैं उनके पीछे मीनिंग क्या है, राइट? दे शुड बी एबल टू एनालाइज द टेक्स्ट, दे शुड बी एबल टू मेक इन्फरेंसेस, टू इवैल्यूएट। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ द एम ऑफ टीचिंग लिटरेचर। दीज आर द की स्किल्स दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू लर्न व्हेन इन स्कूल। तो अब फर्स्ट आपने यू हैव टू फोकस ऑन द कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स टेक्स्ट में हैं तो उनके उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनके डिस्टिंग्विशेस फीचर्स हैं, वो हमें पता होना चाहिए। उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है? सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब वो किस तरह के सोसाइटी में रहते हैं। उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब वो फाइनेंशियली हम रिच फैमिली की बात कर रहे हैं या पुअर फैमिली की बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स विल अफेक्ट द बिहेवियर। तो ये चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। देन दे शुड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट एक्शंस एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द चैप्टर। they should focus on the expression of feelings. Is the person, जो टोन है
वो सैड है, हैप्पी है, एंग्री है, तो ये एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स पता होने चाहिए। एंड देन द इम्पोर्टेंट डायलॉग्स, द इम्पोर्टेंट स्पीचेस, उसका भी उनको पता होना चाहिए। The second thing they have to focus on is the plot of the story, the theme. उस चैप्टर का थीम क्या है जो मेन इवेंट्स में से इमर्ज कर रहा है। they need to be aware of the events, progression of events. इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला, फाइनल what was the climax, what was the resolution, the links between them. तो ये सारे इवेंट्स उनको सिक्वेंशियली पता होने चाहिए। एंड हाउ डू दीज इवेंट्स शो द थीम, तो मतलब थीम की नॉलेज पूरी तरह से होनी चाहिए। The third thing they have to focus on is the setting. What is the setting of the chapter? वो किस टाइम फ्रेम में है, किस प्लेस के ऊपर फोकस कर रहा है। अगेन व्हाट इज द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ दैट प्लेस, व्हाट आर द पीपल्स बिलीव्स इन दोज टाइम्स, उनका एटीट्यूड क्या था। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारे को अपना ध्यान, we have to focus the child's attention on these things. Then the last thing you're going to focus on is on the form. फॉर्म का मतलब होता है लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी राइम, what is the rhythm of the poem, what is the rhyme scheme of the poem, literary devices like simile, metaphor, pun, repetition and all the others. तो ये सारी चीज़ों पे आपने फोकस करना है। So with this we come to the end of the syllabus. I hope that you found it informative. Thank you so much for watching.